And welcome back to ICSE Topper Talks. Today we're going to be discussing an A to Z strategy for Julius Caesar. जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी from the beginning to the end what you need to do to score 16 on 16 in your English Literature Board examination. So we're going to discuss everything about Julius Caesar, so keep watching this video till the end. सबसे पहले students feel like Julius Caesar is very difficult, it's confusing, it's Shakespearean language. But it's easy. But you do not need to mug up the answers. जैसे कि जो लोग करते हैं mostly answers mug up करते हैं YouTube पे कहीं पे भी चीज़ें दिख जाती है उसको learn करने लगते हैं और हर चीज़ को रटते हैं. But you don't simply do this for ICSE exams. CISCE आपके memorization को reward नहीं करता है, वो आपकी answer writing skill को reward करता है. They test you on factual questions, inference-based questions, analytical questions. जो 5 questions का structure होता है, जिसके लिए I'll be creating a separate video for answer writing skills. If you want, you can comment down below. But today we're going to be talking about how to study it from the beginning of the session. So let's talk about how to understand and apply our knowledge so that you truly grasp the play and everything falls into place naturally. So this is my way of how I studied for the exams and everything. So I used the book plus video combination. I didn't study traditionally. Many YouTube explanation videos use kari alongside the book. As you can see, as you understand, I used to get the line by line explanations. Shakespearean language ऐसे समझ में आती है. And I did direct annotations, meanings, puns, important points, character sketches, anything important. By the way, settings are very important. तो हर scene और हर act के हर scene के बारे में you need to mention. You need to learn the setting. ये जो method है, this transformed my learning experience. Instead of struggling with the Shakespearean language, I had a teacher explaining to me who actually was just teaching me while I followed along in my book. इसका ये मतलब है कि स्कूल में टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने फॉलो करते हैं और वो बहुत चीजें नहीं बताते हैं, even if they tell you. So mostly I believe that English teachers in schools are very I wouldn't want to call them lazy, लेकिन they do not really pay attention to their teachings and their job. दिस इज पर्सनली जो मुझे लगता है, मे बी आपकी टीचर बहुत अच्छी हो, मेरी टीचर अच्छी नहीं थी, तो आई हैड टू फोकस ऑन एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. तो यूट्यूब वाला जो टीचर पढ़ा रहा है, देर एटलीस्ट टीचिंग टू यू ओनली, देर ओनली टीचिंग यू बिकॉज दैट्स अ वीडियो. दे आर टीचिंग अ मिलियन स्टूडेंट्स, जो उनकी वीडियो खोलेगा वो उसको पढ़ा रहे, बट यू वुड फील इट्स अ पर्सनल 1v1 एक्सपीरियंस, राइट? सेकेंड, प्ले मैंने समझा कैसे. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आई रिलाइड ऑन हाई क्वालिटी यूट्यूब वीडियोस दैट एक्सप्लेन द प्ले इन अ क्लासरूम स्टाइल फॉर्मेट. वो समरी नहीं थी, वो डिटेल लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन्स थी. Please comment down if you want me to mention the names of the channel. Actually, I will mention the name of the channel in the description box from whom I studied, or maybe in the comment section. Just check it out. From the channel and the people I studied, right? तो मैंने किस चीज पे फोकस किया? स्टोरी फ्लो एंड प्लॉट प्रोग्रेशन. मैंने इसको एक कहानी की तरह समझा. कैरेक्टर मोटिवेशंस एंड डेवलपमेंट, कैरेक्टर स्केचेस, मेजर थीम्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, की इवेंट्स एंड एवरीथिंग. सिलेबस को रश नहीं करना है, आपको पॉज करना है, समझना है. एंड यू नीड टू बिल्ड जेन्युइन क्लैरिटी इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग एवरीथिंग. ठीक है? नाउ नेक्स्ट स्टेप, आपको फोकस किस पे करना है? कैरेक्टर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड देयर मोटिवेशंस, ट्रेड्स, रिलेशनशिप्स, कैरेक्टर आर्क्स, कैरेक्टर स्केचेस, dilemmas, everything. Themes तो भाई जूलियस सीजर में बहुत इंपॉर्टेंट है. There are a lot of themes that are explored: loyalty, betrayal, ambition, power, fate versus free will, honor. So many themes. Key incidents, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा. एंड द इम्पोर्टेंट डायलॉग्स, कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ऑब्वियसली हर सीन हर एक्ट के हिसाब से वो देखना होगा. तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स फॉर योर आंसर्स, नॉट एवरी सिंगल लाइन इन द प्ले. नाउ स्टेप 4, मैंने याद कैसे रखा. दिस इज अ टिप फॉर यू. पूरे आंसर्स कभी भी मत रटने बैठो, मतलब जूलियस सीजर के लिए
Focus on understanding the core concepts and remembering the key elements that you can use to construct your answers. अगर आपको जूलियस सीजर शुरुआत से लेके एंड तक समझ में आ गई है act 3 to act 5, consider it like a story and consider it like it's like a movie. So you're seeing season 1, season 2 and season 3. But season 1 and 2 आपके course ही में नहीं है. Like we don't have the act 1 and act 2. So season 3 आपका means season 3, season 4 and season 5 है. तो आप उसको seasons की तरह सोचो और seasons की तरह याद रखो. Keywords आपको तभी हो सकते हैं जब आप उसको एक्टिव रियल टाइम पढ़ोगे चैप्टर्स को, मतलब उसके सीन्स और एक्ट्स को एक्चुअल रियल टाइम पढ़ोगे ध्यान लगा के, तभी आपको कीवर्ड्स याद रहेंगे. इंसिडेंट्स एज यू नो एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. एज वी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो अगर आपको अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना है तो यू नीड टू प्रैक्टिस better so you can reinforce the retention and help build your active recall. Step 5, mera practice method. Here is the truth in front of you. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, I'll speak it again. मैंने वर्कबुक्स पे रियलाई नहीं किया, ना मैंने PYQs पे रियलाई किया. Just for Julius Caesar, practicing के लिए practicing. मैंने self generated questions करे, मैंने खुद के practice questions बनाए on what I thought the exam might ask. इसके लिए I didn't create them by myself. I used ChatGPT. मैं अपनी एक और मैंने जूलियस सीजर से रिलेटेड वीडियो बनाई है, मैंने उसमें भी ये चीज बताई थी. तो आई प्रैक्टिस लाइक द फुल थिंग और आपको भी ऐसे ही करना है, राइट? एक्टिव रिकॉल यूज किया मैंने. तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिसिंग इज इन 3 steps. Think through the answer, structure before writing, and practice regularly. Very simple. अब आते हैं आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी पे. दी वन ऑफ द मोस्ट वांटेड थिंग्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है. अगर आपको चाहिए कि मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी पे, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल क्रिएट अ स्पेसिफिक वीडियो जस्ट फॉर आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी. तो मैंने आप लोग को आज ही दे दी हूँ. आंसर राइटिंग कैसे आइडियल आंसर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करना, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन माय चैनल, लेकिन आई वांट द डिमांड फॉर इट फर्स्ट. अभी मैं अपने हिसाब से वीडियोस बना रही हूँ. व्हेन आई गेट द रिक्वायर्ड डिमांड देन आई विल क्रिएट वीडियो अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव नीड्स, राइट? एनीवेज, तो लेट्स टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग. क्या लिखना है ये आधी दिक्कत है और कैसे लिखना है ये आधी दिक्कत है. तो इन दोनों दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आज मैं आ चुकी हूँ. सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए. आंसर में कीवर्ड्स यूज करो, रेलेवेंट पॉइंट्स यूज करो. जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ वही. अभी मैं आपको अगली वीडियो में अगले स्लाइड के साथ बताऊंगी. रेलेवेंट पॉइंट यूज करो and correct length रखो. अब the writing of people matter. Personally, my handwriting was a little big, but these were the ideal lines for my answers. Exams में exam copy जो होती है उसके according. School की notebooks में तो no. तो for the, as you can see, 5 to 6 lines for the 3 markers and 7 to 8 lines for 4 markers. What basic structure होता है जो आपको रखना है. इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. शॉर्ट आंसर्स के लिए भी इंट्रो डजंट नेसेसरली मीन कि आप इंट्रोडक्शन देने बैठ जाए. तो यस, आई थिंक एन आंसर राइटिंग वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू. बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक व्हाइल राइटिंग द आंसर्स. क्वेश्चंस ही नहीं समझते हो. यू अप्रोच द क्वेश्चन विद समथिंग रॉन्ग. वो आप उसके डिमांड को नहीं समझ रहे हो. अगर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डिड ब्रूटस जॉइन द कंस्पिरेसी, तो आप एक जनरल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो कि ब्रूटस वाज सच एन ऑनरेबल पर्सन एंड ही वाज manipulated and this and that and this and that. No, the question is asking you why explicitly. So focus specifically on the reasoning, motivations, and his concerns about Caesar's ambition. And इसमें as an extra line आप mention कर सकते हो कि the circumstances of how he was manipulated. You must remember, Julius Caesar के लिए answer exactly what is asked, not what you wanted to write. Irrelevant content से आपको marks नहीं मिलेंगे. You're just gonna get 0 out of 2 or 3. Sorry, 0 out of 3 or 4.
फाइनल स्ट्रैटेजी आपके लिए, अंडरस्टैंड यूजिंग एक्सप्लेनेशंस। इवन आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है तब भी आप ये फॉलो कर सकते हो, बिकॉज दिस इज इन डिफिकल्ट, दिस इज ए ट्रू पैटर्न। Understand using explanation. Focus on characters and themes, like I told you. Remember via keywords, key terms ko yaad rakho. Practice answers regularly. Write to the point. Stick to the question. So I hope आप लोग को ये strategy समझ आ गई हो. I just wanted to let you guys know that Julius Caesar is not hard, पर गलत approach उसको hard बना देती है. So if you guys want any more things, then just comment down below and I'll see you guys in the next one. Until that time, keep studying smart with ICSE Topper Dogs.